So UGC NET June 2025 exam date is out and we have exactly 60 days at our hand. If you are someone who is determined to clear this exam, in this very attempt, I have brought for you a solid and a very realistic strategy plan that will help you know how are your these 60 days going to look like. We will have to make all these 60 days count for ourselves. We will have to put in a lot of effort because let's be honest, we are not going to go over that same process again of failing the exam and then taking out our books and studying it all over again. So you will have to decide for yourself how are your these 60 days going to look like. If you want to make them count, please follow this particular strategy that I have made with a lot of thought and effort. I am going to tell you how much time do you need to study each day, how much efforts are you going to put in which section, how much hours do you going to study in these 60 days. So if you follow this particular plan with complete honesty and all your efforts, I am definitely going to guarantee you that you are going to pass this exam. If you look at your screens, I have divided these 60 days into 3 phases. Your phase number 1 is from day 1 to day 30. This will have your core study. What are you going to study in these days? I will tell you shortly. In phase number 2, from day 31 to day 45, we are going to do smart revision and we are going to focus a lot on our practice. In phase number 3, which will be the final round where we prepare ourselves to go to the exam center and how we are going to prepare our mind to sit in the exam center and crack the questions, will be your 15 days. I will tell you in this entire 60 days how are you going to use your brains, your mind, your efforts to take out extremely good results for yourself. Number 1 is our phase 1. Now when I say phase 1, this is the time when we do core study. What do I mean by core study? आपने जितना भी अभी पढ़ के रखा होगा उसको आपको revamp करना पड़ेगा. You are going to change your strategies. You are going to sit today after watching this video, make an entire plan as per what I tell you and then you are going to start with your core study. ये होगा आपका day 1 से लेके day 30 तक. Now you have to put in 8+ hours each and every day. जिसकी कैपेसिटी ज्यादा की अलाउ करती है, of course you are welcome to go ahead and आप उससे ज्यादा पढ़ सकते हो. But if you are putting in 8 hours of focused study, देखो आप 10 घंटा 13 घंटा पढ़ सकते हो आधे टाइम रील देखकर, खाना खाकर, सोकर, that is not going to count. अगर आप प्रॉपर ब्रेक्स लेकर 2 आवर्स के गैप में स्टडी करते हो, पूरी तरीके से 8 आवर्स की फोकस स्टडी करके, आई एम टेलिंग यू, यू आर वेरी इजीली गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम. द डिफरेंस इज कि आप कितनी कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करते हो या फिर आप कितनी डाइल्यूटेड स्टडी करते हो. तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठना है एंड मॉर्निंग में आफ्टर डूइंग योर मॉर्निंग रिचुअल्स आपको अच्छे से 2 घंटा बैठकर स्टडी करना है, विच विल बी योर कोर स्टडी. इसमें आपको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा विद ब्रिटिश लिटरेचर. नाउ when I say British literature, I am not expecting you to take out your books and notes and start right away from Anglo-Saxon age. You start reading Age of Chaucer and आप उस टाइम के एंग्लो नॉर्मन एज के राइटर्स एंड उनको पढ़ रहे हो. ऑफ कोर्स आपने उनको पढ़ा होना जरूरी होना चाहिए, बट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू पीपल नो कि ब्रिटिश लिटरेचर के जो स्टार्टिंग वाली एजेस होती हैं उनसे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जितने आपके जो लास्ट एजेस होती हैं, जैसे योर पोस्ट मॉडर्न एज, योर विक्टोरियन एज एंड रोमांटिक एज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जब आप अपनी कोर स्टडी करना स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट स्टडिंग द मेजर राइटर्स एंड द मेजर वर्क्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ एवरीवन नोज कि हमारी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. सो व्हेन आई से योर कोर स्टडी, यू आर गोइंग टू रिवाइज एंड लर्न. बहुत ज्यादा आप एफर्ट्स लगा के जो डेट्स हैं, जो नेम्स हैं, उनको याद करोगे. आपने क्वेश्चंस देखकर खुद से अभी तक समझ लिया होगा कि मुझे इस पर्टिकुलर राइटर की डेट तो रटनी ही है, मुझे इस पर्टिकुलर राइटर की पोएट्री एंड टाइटल्स पता होने चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर राइटर की पोएट्री कलेक्शंस, ट्रायलॉजीज, एंथोलॉजीज, प्रोज एंड पोएट्री पता होनी चाहिए. ये जो आपका मॉर्निंग का 2 आवर होगा जिसमें आप सबसे ज्यादा फ्रेश होते हो, वो आप ब्रिटिश लिटरेचर एंड उसके मेजर वर्क्स इन क्रोनोलॉजी को डेडिकेट करोगे. वंस यू आर
डन विद दीज 2 आवर्स यू टेक अ ब्रेक। मिड डे में आप अपने 2 आवर्स में क्या स्टडी करने वाले हो? लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड मूवमेंट्स। नाउ दिस इज एज पर यू कि आप इसको किस तरीके से सिग्रीगेट करते हो, ऑल्टरनेट बेसिस पे आप इसको पिकअप करते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन आपका दिन का सेकेंड पार्ट विल बी डेडिकेटेड टू योर लिटरेरी थ्योरी, बिकॉज ब्रिटिश लिटरेचर के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपका लिटरेरी थ्योरी प्लस क्रिटिसिज्म लेकर चला जाता है, जहां पर आप एक पर्टिकुलर लिटरेरी थ्योरी को उठाते हो, उसके राइटर को उठाते हो, उसके राइटर के कौन से क्रिटिकल टर्म्स हैं वो आपको लर्न करने होते हैं, कौन से क्रिटिकल उनके वर्क्स हैं वो लर्न करने होते हैं अलॉन्ग विद द डेट। आपकी लिटरेरी थ्योरी में इससे ज्यादा और कुछ पूछा ही नहीं जाता है। जितने भी बच्चों ने लिटरेरी थ्योरी को समझा नहीं है या फिर इंटरनेट पर लोगों ने उसको बहुत ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन आपको देकर डिफिकल्ट कर दिया है, लेट मी टेल यू, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी जाननी है कि वो किस बेसिक टेनेट के ऊपर काम करती है, डायरेक्टली उसके अंदर आने वाले राइटर्स को जानना है, उनके क्रिटिकल टर्म्स एंड वर्क्स की डेट को याद करना है, खत्म हो जाएगा आपका लिटरेरी थ्योरी। द सेम गोज विथ योर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जहां पर आप प्लेटो, अरिस्टोटल, उनके मेजर वर्क्स, उनकी मेजर थ्योरीज एंड टर्म्स के बारे में जानते हो। नेक्स्ट इज लिटरेरी मूवमेंट्स। ये एक ऐसा सेक्शन है आपके सिलेबस का जो आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिटरेरी मूवमेंट्स आपके ठीक ब्रिटिश लिटरेचर की तरह एज वाइज चलते हैं। आपने एक बार एक पर्टिकुलर मूवमेंट का नाम जान लिया, वो कब ओरिजिनेट किया था, डेट जान ली, उसके अंदर के आने वाले राइटर्स की लिस्ट बना ली है एंड उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था वो पढ़ लिया है, यू आर डन विद लिटरेरी मूवमेंट्स। मैंने आपको कई बार बताया है कि किस तरीके से इनको पढ़ना है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग बाय नाउ कि आपको ऑलरेडी पता है हाउ टू डील विद दिस टॉपिक्स। आपके कोर्स स्टडी के 2 सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आफ्टरनून में, आफ्टर योर मिड डे, आप जब उठाओगे इंडियन लिटरेचर को एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? नाउ मेनी ऑफ यू विल से कि अब तो आपके लिटरेरी थ्योरी को छोड़ के इंडियन लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दिस इज करेक्ट एज पर द ट्रेंड्स जो आसपास के हम लोग ने पेपर में देखा है। पिछले 2 से 3 शिफ्ट में हम लोग ने इंडियन लिटरेचर से ज्यादा क्वेश्चंस देखे हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम लोग सारा अपना फोकस इंडियन लिटरेचर पे डाल के लिटरेरी थ्योरी को साइडलाइन कर देंगे। ये गलती मत करना। आपका यूजीसी नेट बड़ा चालाक है, वो कभी भी आपका ट्रेंड बदल देगा। किसी से कम क्वेश्चंस पूछ लेगा, किसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा। नाउ वी बीइंग ह्यूमंस, नो वन कैन क्लेम, कोई भी टीचर आके ये नहीं बोल सकता है कि ये मैंने बोला था, देखो ऐसे करके आया है। वी लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। यू पीपल आर वेरी वाइज एंड यू अंडरस्टैंड कि कुछ भी कभी भी आ सकता है, ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड उसके अकॉर्डिंग काम करना है, एंड दैट इज व्हाई आफ्टर ब्रिटिश लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी आई पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इंडियन लिटरेचर, जहां पर आपको राइटर पढ़ने हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़नी है, ओनली इंपॉर्टेंट वंस की। ठीक है, आपको बायोग्राफी सारे राइटर्स की नहीं पढ़नी होती है, उनके 4 से 5 इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं जिनसे बार बार हमेशा वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी बेटा आपको डेट रखनी पड़ेगी। इंडियन लिटरेचर से सबसे ज्यादा वर्क्स पूछे जाते हैं एंड डेट पूछी जाती है। इंडियन लिटरेचर से आप बहुत सारे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हो। जब भी किसी राइटर को उठाओ, उनके वर्क्स पर फोकस करो, उनके डेट पर फोकस करो, उनके प्रोटैगनिस्ट पर फोकस करो, एंड यू विल बी डन विद इंडियन लिटरेचर। सेम गोज विद योर पोस्ट कॉलोनियल। नाउ आई वुड नॉट से कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को पहले उठाओ और इंडियन लिटरेचर को बाद में करो। आपको नंबर 1 में ब्रिटिश लिटरेचर करना है, नंबर 2 में लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म करना है, नंबर 3 में आपको इंपॉर्टेंस देनी है इंडियन लिटरेचर को, एंड उसके बाद आप पोस्ट कॉलोनियल एंड बाकी सेक्शंस को टच कर सकते हो। नाउ व्हेन यू आर डन विद दिस, जो भी मैंने आपको बताया, इवनिंग में आप करोगे प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज एंड नोट्स रिवीजन। प्लीज अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को ये मिथ होता है कि वो पूरा दिन उठा के रटते जा रहे हैं, जो उन्होंने नोट्स बनाए होते हैं या किसी के कोर्स को अवेल किया होता है उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं। आप अगर अपने दिन के एंड का या एक दिन का कोई ऐसा बड़ा चंक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को डेडिकेट नहीं कर रहे हो, आई एम वेरी सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम एंड आई विल
विल बी वेरी ब्लंट एट योर फेस, क्योंकि अभी अगर मैं आपको मीठी गोली दूंगी तो फेल होकर आप बैठ जाओगे, एंड आई डू नॉट वांट टू सी माय स्टूडेंट्स गेटिंग डीमोटिवेटेड एट एनी कॉस्ट। हमें ये एग्जाम निकालना है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है हमारे पास। सो दिन का आखिरी जो चंक होगा 2 आवर्स में आप प्रैक्टिस करोगे। नाउ दिस प्रैक्टिस कैन बी मिसलेनियस, कि आप मिसलेनियस प्रैक्टिस करना चाहो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड से कि आपने जिन सेक्शंस को पढ़ा है उनके आप क्वेश्चंस उसी दिन लगाओ, टू जज एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस हमसे निकल भी रहे हैं या नहीं। बच्चे एंड तक इस मिथ में रहते हैं कि हमें आता है, पर उन्हें आता कुछ नहीं है। आपको क्या आता है एंड क्या नहीं, ये आपको कोई तीसरा बंदा नहीं बताने वाला है। क्वेश्चंस लगाओ, खुद से जान जाओ, ठीक है। इन योर लास्ट चंक में आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, एंड जो कुछ भी पूरे दिन में पढ़ा है वो आपको नोट्स रिवीजन करना है। दिस इज व्हाट आई विल कॉल योर 30 डेज शुड लुक लाइक, कि हर दिन उठ के आपको इन 30 दिनों में कोर स्टडी करनी है। आप पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस लगा रहे हो। नाउ फेज 2 के लिए आई ऑल्सो वांट टू ऐड ऑन, फेज 1 के लिए आई ऑल्सो वांट टू ऐड ऑन सम थिंग्स, कि डे 6 एंड डे 7 आपका 1 से लेके 5 डेज से थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। इन डेज में आपको क्या करना है, ब्रिटिश लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, मूवमेंट, इंडियन लिटरेचर, वो मैंने आपको बता दिया। पर डे नंबर 6 पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है कल्चरल स्टडीज के ऊपर, लैंग्वेज इन पेडागोजी के ऊपर, इंग्लिश इन इंडिया एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर। इन टॉपिक्स को भी आपको भूल नहीं जाना है, लेकिन आपको हफ्ते के ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब 6 एंड 7 डेज पे आपको इन पर फोकस करना है। नाउ ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो 3 घंटे 4 घंटे आप 2 हफ्ते के 2 दिन दे दोगे तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसे नहीं है कि ब्रिटिश लिटरेचर की तरह खत्म ही नहीं हो रहे हैं, इंडियन लिटरेचर की तरह आप रटते ही जा रहे हो। इन पर अगर आपने अपना 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स बिल्कुल अच्छे से डेडिकेट कर लिया, नोट्स बना लिए, कल्चरल स्टडीज खत्म, लैंग्वेज एंड पेडागोजी खत्म, इंग्लिश इन इंडिया में सिर्फ कमीशन आपको याद करने होते हैं, किसने कौन सी कमीशन दी, कौन ये वाली आपकी कमीशन को लेकर आया, कौन से लॉर्ड ने हमारे इंग्लिश में, हमारे इंडियन लिटरेचर में इंग्लिश को लेकर आया, यूनिवर्सिटी को लेकर आया। दीज आर द ओनली थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेम गोज विद योर रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेम वही एमएलए साइटेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीयर रिव्यू, लिटरेचर के रिसर्च क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस उठा के आप जज कर सकते हो और इन पर आप डे नंबर 6 पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। 7th डे, दैट इज योर संडे, उस दिन हमें सोना नहीं है। आपका आधा दिन पीवाईक्यू प्रैक्टिस में जाएगा एंड आधा दिन जाएगा वीकली रिकैप में। नाउ यू हैव टू टेक प्रॉपर गैप्स एंड डू योर रिवीजन। एक हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसको भुला नहीं देना है, आपको बार बार रिपीट करना है। आपका जो एग्जाम है वो आपका रट्टाफिकेशन एग्जाम है, कुछ दिमाग वाला एग्जाम नहीं है। तो क्योंकि रट्टाफिकेशन वाला एग्जाम है, रिपीट करते रहो अपने दिमाग में, नहाते टाइम, ब्रश करते टाइम, चाय पीते टाइम, ब्रेकफास्ट करते टाइम। डेट्स घूमनी चाहिए विदाउट आपके सामने कोई बुक हो। आपको लिरिकल बैले की डेट पता होनी चाहिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया की, आपको मेजर राइटर्स के मेजर वर्क्स की लिस्ट आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। ये सभी बच्चे करते हैं, हम लोगों के दिमाग में कुछ टाइम तक इन डेट्स को हमें रखना ही पड़ता है, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू नेविगेट योर फेज नंबर 1। नाउ लेट्स गो एंड सी कि फेज नंबर 2 में हम क्या कमाल करने वाले हैं। फेज 2 आपका रिवीजन वाला एक फेज होगा। दैट मीन्स कि जब आपका पूरा मई का जो मंथ है वो हो जाता है, तो आप जो 31 डे से लेके 45 तक का जो डे होगा उसमें करोगे स्मार्ट रिवीजन एंड प्रैक्टिस। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से स्मार्ट रिवीजन? जो हमने नोट्स बनाए हैं बस उसको ऐसे आंख बंद करके आपको रटते चले जाना है? नहीं, तब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पिक आउट करनी है कि आप डेट पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, नाम पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, टाइटल रटते जा रहे हो। आपको तब चीजें समझनी नहीं है, प्रॉपर आपको शॉर्ट नोट्स एंड शॉर्ट पॉइंटर्स में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना है। आपका जो मॉर्निंग होगा वो किस तरीके से होगा कि आपने स्टार्ट किया ब्रिटिश लिटरेचर को रिवाइज करने से एंड इंडियन लिटरेचर को रिवाइज करने से। आप इसमें टाइम अपने आप से ही क्या कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो। किस तरीके से आपको ये रिवाइज करना है? आपको क्विक नोट्स जो आपने अपनी कोर्स स्टडी के टाइम बनाए होंगे उनको आपको देखना है। कोई भी बंदा आके आपको पीडीएफ पकड़ा जाए कि हाँ मुझे पीडीएफ दे दो, किसी भी ग्रुप का आप पार्ट बन जा रहे हो, वो आपको बड़े बड़े चिट्ठे पकड़ा रहा है एंड आप खुश हो जा रहे हो कि वाह अब तो मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा, ये सब काम नहीं करने हैं।
कोर्स स्टडी के टाइम पे जो आपने सेल्फ स्टडी की है, जो सेल्फ नोट्स बनाए हैं, बेटा काम वही आने वाले हैं। एंड जितने भी बच्चों ने इस पेपर को क्रैक किया है उनका भी यही मानना है, खुद के बने हुए नोट्स ही आपको काम आते हैं, इधर उधर के बटी हुई पीडीएफ विल बी ऑफ नो यूज टू यू। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो वंस यू आर प्रैक्टिसिंग रिवाइजिंग योर क्विक नोट्स एंड प्रैक्टिसिंग योर पीवाईक्यू, ये आपके मॉर्निंग का 3 आवर्स चला जाएगा। मिड डे के 3 आवर्स में आप अगेन थ्योरी, क्रिटिसिज्म एंड पेपर वन को भूल मत जाना। हमारा पेपर 2 इंपॉर्टेंट है, पर हमारा पेपर क्रैक होगा पेपर 1 के सहारे। तो पेपर 1 पे भी आपको अच्छा टाइम स्पेंड करना है। अगर आप अभी कोर्स स्टडी के टाइम पे पेपर 1 को लेके अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते हो, दैट इज वाई मैंने बहुत दिमाग लगाया कि पेपर 1 को हम लोग नेक्स्ट मंथ के लिए रख दे रहे हैं, क्योंकि वो जितना रिसेंटली हम लोग पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमें याद रहेगा। सो पेपर 1 को आप डेडिकेट करो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट यू बिलीव इज राइट फॉर यू, एंड उसकी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, थ्योरी, क्रिटिसिज्म प्लस पेपर 1 इन द मिड डे ऑफ 3 आवर्स। इवनिंग में आपको जो 2 घंटे लगाने हैं, अब आप नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देंगे फुल लेंथ पीवाईक्यूज लगाना। मतलब आप पूरे 100 क्वेश्चन की एक सेट को उठाओगे और उसको लगाओगे। उसके लगाने के बाद आप मिस्टेक एनालिसिस करोगे। आपको पेपर लगा के खुश नहीं हो जाना है कि अरे वाह मैंने पेपर लगा लिया, आई एम डन, मेरा तो पेपर निकल जाएगा। मिस्टेक एनालिसिस करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट कि कितने सेक्शन आपके सही बैठ रहे हैं, तो उस पर अब मुझे कम एफर्ट लगाने हैं। कौन से सेक्शन है जो मेरे अभी भी गलत हो रहे हैं, उस पे अब ज्यादा एफर्ट्स लगाना है। अगर कोई भी बच्चा, आप बाय नाउ अभी तक समझ गए होंगे कि कितना स्मार्टली एंड स्ट्रैटेजिकली बनाया गया है। कोई भी बच्चा जो अपने एग्जाम के 1 महीने पहले तक अपनी गलतियां एंड वीक सेक्शंस ढूंढ ले रहा है एंड उस पे वो काम करना एंड रिवीजन करना स्टार्ट दे रहा है, कैसे उस बच्चे का एग्जाम क्लियर नहीं होगा? जस्ट टेल मी। फेज नंबर 3 में जब हम लोग आते हैं, ये है हमारा फाइनल राउंड, एंड हियर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर माइंड टू सिट इन द एग्जाम सेंटर। आप जब एक डिजिटल कंप्यूटर के सामने बैठते हो, यू हैव टू मेक योर सेल्फ रेडी। आपको अपने दिमाग में विजुअलाइजेशंस करने हैं कि मैं उस पर्टिकुलर चेयर पे बैठा हूं या बैठी हूं, वहां पर डिजिटल स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड हम लोग उसको 1 बाय 1 पढ़कर फटाफट टाइमर के अकॉर्डिंग पढ़ के मार्क करते जा रहे हैं। इसको करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी होगी। जितने भी बच्चे ये गलती करते हैं कि कहीं से भी मॉक टेस्ट उठा ली, कहीं से भी पेज वाइज एंड बुक में पीडीएफ में क्वेश्चंस वो लोग लगा रहे हैं, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेयर ऑफ द सिचुएशन जहां पर आप लोग जाकर बैठने वाले हो। बहुत सारे बच्चे डिजिटली कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वहां पर जाकर बिल्कुल एंशियस एंड हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ। बिकॉज दिस इज नॉर्मल कि कोई भी चीज जो आपने कभी की ही नहीं वो आपको करने को मिलेगी, तो आपको समझने में ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपके टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है इंक्लूडिंग आवर्स, तो उसको आप लोग एक बार जरूर से चेकआउट करो एंड आप डिजिटली कहीं से भी लगाओ, लेकिन डिजिटली अपने क्वेश्चंस की एंड टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करो। नाउ हमारे फेज 3 में जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो है हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस का। अब हम लोग रिवीजन एंड नोट्स को रट नहीं रहे हैं और अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। आपको यहां पर एमसीक्यूज नहीं होना चाहिए। आई एम इन नो वे आस्किंग यू टू डू रैंडम एमसीक्यूज। सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं एंड शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको चीजें कंज्यूम करनी है। इंटेंसिफाइड प्रैक्टिस में आपको बार बार क्वेश्चंस लगाने हैं, पीवाईक्यू सेट्स लगाने हैं, चाहे सेक्शन वाइज लगाओ चाहे आप मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाओ, लेकिन क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अब आपको बढ़ा देनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस ही काम आने वाले हैं। जहां पे गलती दिखे देन यू रेफर टू योर शॉर्ट नोट्स। ये नहीं कि पूरी पीडीएफ एंड पूरे बड़े बड़े नोट्स आप फिर से पढ़ने लगोगे। आपके एग्जाम के 15 दिन पहले दिमाग को खाली करना स्टार्ट करना है, ना कि और उसको बॉम्बार्ड करना। ठीक है। अब नाउ आई वुड नॉट से कि आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है आपके एग्जाम के 15 दिन पहले। अब आप अपना टाइम थोड़ा कम कर दोगे, प्रेशर लेना कम कर दोगे, ताकि आपने जो 2 महीने पढ़ा है उसकी रिटेंशन आपकी क्या हो जाए, हाई हो जाए। देन आपको हर दिन 100 पीवाईक्यू सेट्स ईयर एंड सेक्शन वाइज लगाने हैं और टेस्ट इवैल्यूएशन करना नहीं छोड़ना है। एग्जाम के 15 दिन पहले भी आपको पता होना चाहिए कि यार ये वाला सेक्शन हमसे बार बार गलती हो रही है, तो यू विल गो एंड अगेन रिवाइज इन शॉर्ट पॉइंटर्स। रैपिड रिवीजन करना है लिटरेरी एजेस का, क्रिटिसिज्म का एंड आपकी थ्योरी का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो हियर आई हैव फॉर यू द एंटायर
पेपर एंड उसकी इंपॉर्टेंस। नाउ ऑल ऑफ यू नो कि ब्रिटिश लिटरेचर हमारा नंबर 1 पे हमेशा रहता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आई गेट मैसेजेस लाइक कि मुझे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे मैम पढ़ा ही नहीं है, मैम मैंने अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा ही नहीं है, तो मैं इस पे कैसे करूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका ब्रिटिश लिटरेचर प्रिपेयर है तब ना आप पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड आपके अमेरिकन लिटरेचर की टेंशन लेके बैठो। आप वर्ल्ड लिटरेचर को लेके परेशान हो जब आपका ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, इंडियन लिटरेचर प्रिपेयर ही नहीं है। सो प्लीज डोंट बी अ फूल एंड डू दीज काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स। आपको अपने पेपर का पूरा सिलेबस कवर करना ही नहीं होता है। ये मिथ क्रिएट किया गया है इंटरनेट पे कि आपका ये करना है, ये करना है, सिर्फ आपको डराने, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी मूवमेंट, इंडियन लिटरेचर एंड बाकी लैंग्वेज पेडागोजी एंड कल्चरल स्टडीज वगैरह को पढ़ के आप इस पेपर को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, आई नो मीन्स डू आई मीन कि अमेरिकन लिटरेचर मत पढ़ो, आप पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर मत पढ़ो, वर्ड लिटरेचर तो आता ही नहीं है, उससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन इट इज ओके कि आपके उससे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। अगर आपके ब्रिटिश से क्वेश्चंस गलत हो गए, आपके इंडियन से क्वेश्चंस गलत हो गए, पेपर नहीं आपका क्रैक होने वाला है। ये बहुत ही स्मार्ट एनालिसिस के थ्रू मैं आपको कह पा रही हूँ, एंड आई डू अग्री कि बहुत सारे बच्चे इससे अग्री कर रहे होंगे। ठीक है, थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म 4 स्टार्स इंपॉर्टेंट है। इंडियन लिटरेचर को मैंने 3 स्टार दिए हैं, जबकि उससे आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये सीजनल है, ये बदलता रहता है। कभी इंडियन लिटरेचर से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कभी आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो ये एक ऐसा सेक्शन है जो हमें प्रिपेयर तो करना है, पर इंपॉर्टेंस वाइज थोड़ा सा हम लोग अभी मिडवे हैं। कल्चरल स्टडीज, पेडागोजी, मूवमेंट्स एंड अदर, जिसमें आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंग्लिश इन इंडिया आ जाएगा, वो भी आपके 3 स्टार में इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस, आप फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से आएंगे उसको लेके परेशान रहते हो, जिसमें से ज्यादा आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू जज फॉर योरसेल्फ कि मेरा टाइम लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस पे इतना कीमती टाइम जा रहा है, या फिर मुझे टीएस इलियट के वर्क्स रट लेने हैं, मुझे रोमन याकोब्सन के सारे क्रिटिकल टर्म्स पता होने चाहिए, मुझे सारे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर आने वाले राइटर्स एंड उनके जितने भी टर्म्स हैं वो पता होने चाहिए। सो यू हैव टू जज फॉर योरसेल्फ। एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई बच्चा 15 एंड 14 आवर्स में स्टडी कर रहा है, कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ के ही इस नेट को क्लियर कर ले रहा है। वन थिंग इज फॉर श्योर, देयर इज नथिंग कॉल्ड दिस 2 मिनट मैगी। जितने भी लोग बोलते हैं 45 डेज में करे नेट एनजेआरएफ क्रैक, 15 दिन में करे नेट एनजेआरएफ क्रैक, देखो आपके हार्डवर्क का कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं है। इफ यू थिंक कि बिना हार्डवर्क के ये पेपर क्रैक कर लोगे, तो बहुत सारे बच्चे रट रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं इस एग्जाम के लिए, वो दुनिया भूल चुके हैं एंड वो इस पेपर को क्रैक करेंगे। सो इफ यू आर रेडी टू वर्क दैट हार्ड एंड अटेन अ प्लेस फॉर योरसेल्फ, आप अचीव करो जिस पर इतने टाइम से लगे हुए हो, तो प्लीज पुट इन एफर्ट्स। अपना ध्यान हर डिस्ट्रैक्शन से हटा लो। कोई भी एक ऐसा बंदा जो आपको डीमोटिवेट करता है, उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। अपनी मेंटल पीस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। जो लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके ही साथ रहो। एंड बिलीव मी, आपकी प्रिपरेशन जर्नी का कोई दिन बहुत अच्छा जाता है जब आपने जो कुछ भी प्लान किया होता है वो आप कर लेते हो बाय द एंड ऑफ द डे। कोई दिन बहुत घटिया जाते हैं एंड वो इंसान को डीमोटिवेट कर देता है। कभी भी डीमोटिवेट मत होना, इंसान का हर दिन एक जैसा नहीं होता है। अगले दिन बेटर करने की कोशिश करना, एंड ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आपकी हेल्प करने के लिए। सो मैंने जो कुछ भी बताया, अगर आप में से जितने भी बच्चे इस पॉइंट तक पहुंचे हैं, वीडियो को इस पॉइंट तक देखा है, मुझे सबसे पहले तो कमेंट करके बताना कि वी हैव वॉच्ड दिस वीडियो अप टिल द एंड एंड वी आर गोइंग टू फॉलो व्हाटएवर यू हैव टॉट, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे एक्चुअल में सीरियस हैं इस पेपर को पास करने के लिए। नाउ मेरी तरफ से आपके लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा टू हेल्प एंड ईज योर स्टडीज। मेरे ये कोर्सेज आपने अगर अवेल किए हैं या फिर आप अवेल करना चाहते हैं, किसी भी सेक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ के उनके क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में, प्लीज गो अहेड एंड आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, जज करना है खुद को, आपको हमारे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में ईयर वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे डिजिटली इन अ टेस्ट सीरीज फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में जो आपका एनटीए पूछता है। कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा।
तो ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत मदद करेंगे आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। प्लीज बी कनेक्टेड विथ मी थ्रू माय व्हाट्सएप एंड माय टेलीग्राम, जहां पर मैं आपको डेली बेसिस पर लिंक्स, नोटिफिकेशन एंड फ्री क्वेश्चंस बहुत टाइम से करा रही हूं। जितने बच्चे इसका पार्ट है दे फील रियली गुड कि इन क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस से उनकी हर दिन की प्रिपरेशन बेटर होती है। डू लेट मी नो योर फीडबैक कि आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में। आर यू रेडी टू डू व्हाट आई हैव टोल्ड यू एंड टर्न योर टेबल्स अराउंड एंड क्रैक दिस एग्जाम? मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आई विल बी कमिंग अप विथ मेनी मोर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, रिवीजन वीडियोस जो आपकी स्टडी में कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो उसके लिए रेडी रहना एंड पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम गोइंग टू मीट यू इन नेक्स्ट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।